Hello everyone, we are starting with chapter 3, that is control statements. Now we know that computer program is nothing but a set of instructions. This set of instructions जिसे हम normal language में statements बोलते हैं. These statements may occur sequentially or may have some conditions because of which it may jump on other part of the program, be it some other function, be it some other statements. तो ये इंस्ट्रक्शन जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप कर रहा होता है तो ये जो फ्लो कंट्रोल है एग्जीक्यूशन का वो बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है. देखना पड़ता है कि बीच में हैंग ना हो, बीच में स्क्रीन शट ना हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एरर. So there are particular statements that help us control this flow of execution. Such statements are called as control statements. In C, basically there are three types of control statements, that is branching, looping and nested structure, which we'll be seeing one by one in detail. So starting with first control statement, that is branching statement. As I said, a program consists of n number of statements because of which it may have to jump on other part based on some condition. So the branching statements lets the program to make a decision on whereas to jump or to continue the normal execution. So branching में there are particular types. सबसे पहले we will start with the if statement. The if statement is nothing but a powerful decision making statement which is basically giving two outputs. Like if the condition is true, it will execute the true block. If the condition is false, it will execute the false block. Or if there is no false block, it will just continue the execution immediately following the if block. So here it basically allows the computer to evaluate the expression. यानी वो सबसे पहले कंप्यूटर को allow करता है कि जो भी condition है हम उसको पहले test करें, and then depending on that whether the condition is true or false, it transfers the control to the different statements. So after the condition is checked, there comes a point where the program has two paths to follow. Either if the condition is true, so it will go on the true wala block. If the condition is false, it will go on the next block that is being mentioned over there. So this if statement can be used in many forms. इसका सबसे पहला और simplest form is the simple if statement, which is rarely used nowadays, and the most commonly used is the if else statement. Starting with simple if statement, the general form या general syntax जिसको हम बोलते हैं if statement का, it is as shown over here. If टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे ब्रैकेट में कोई भी टाइप का कंडीशन आ सकता है, जैसे a greater than b, x less than y, x equals to 10, वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेक बेस्ड ऑन दैट. सो जो भी कंडीशन हम यहाँ ब्रैकेट में इंटर करते हैं, इफ़ दैट कंडीशन इज ट्रू ओनली देन ये जो ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट्स रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा. अगर जो कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन की है वो फॉल्स हो जाएगा तो ये सीधा स्किप होके डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स पे आ जाएगा. इसका सिंपलेस्ट मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो ये जो ब्रैकेट है, द स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट इज कॉल्ड एज द स्टार्ट ऑफ इफ ब्लॉक एंड दिस एंड ब्रैकेट इज टर्म्ड एज द एंड ऑफ द इफ ब्लॉक. ये स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट के बीच में जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, that statements will be executed if and only if the condition mentioned over here is true. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा और सीधा स्टेटमेंट एक्स यानी जो भी दूसरा स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए वो वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा. अब वो स्टेटमेंट ब्लॉक में एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या मल्टीपल स्टेटमेंट होगा. इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट प्रोग्राम यू आर राइटिंग. ये उसका फ्लो चार्ट है. सी दिस इज द एंट्री टेस्ट कंडीशन, यानी ये अपना इफ़ वाला का पार्ट है कि अगर इफ़ में जो भी कंडीशन दिया है, एज आई सेड आफ्टर टेस्टिंग द कंडीशन देयर विल बी टू पाथ्स, वन पाथ फॉर द ट्रू, वन पाथ फॉर द फॉल्स वन. सो इफ़ द कंडीशन इज ट्रू तो जो भी इफ़ ब्लॉक में लिखा है वो स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉलोइंग द इफ़ ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ईदर ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा. ये रहा एग्जाम्पल. इट सेज इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस बोनस, ग्रेड इक्वल्स टू ए.
विच मीन्स अगर कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स 90 से ज़्यादा है और अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो हम मार्क्स में बोनस मार्क्स ऐड करेंगे और ग्रेड को A+ असाइन करेंगे। printf मार्क्स अचीव्ड इज %d, मतलब जो भी मार्क्स रहेगा उसका टोटल ऐड होके सीधा उसमें रिजल्ट प्रिंट करेगा। लेट्स से अगर किसी स्टूडेंट को 92 आता है, सो इट मीन्स इट इज़ 92, लेट्स से बोनस हम 100 दे रहे, सो इट इज़ 92 प्लस बोनस दैट इज़ 192। सो उसका ग्रेड क्या प्रिंट होगा? A+। यहाँ पे मार्क्स अचीव्ड आएगा 192 ग्रेड में A+। बट अगर किसी स्टूडेंट को 50 आते हैं एंड 50 इज़ नॉट ग्रेटर देन 90, तो ये दो स्टेटमेंट जो है यानी ये जो इफ़ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा प्रिंट हो जाएगा मार्क्स इज़ 50। ये स्टेटमेंट इसीलिए प्रिंट होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट इफ़ ब्लॉक के बाहर है। इफ़ यू सी द इफ़ ब्लॉक इज़ एंडिंग ओवर हियर बिकॉज द ब्रैकेट इज़ एंडिंग ओवर हियर। ये इफ़ का स्टार्टिंग ब्रैकेट स्टार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ये एंडिंग ब्रैकेट एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ये उसके बाहर है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होता है तो सीधा जंप होता है इंस्ट्रक्शन ये वाले लाइन पे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। थैंक यू।